Dear students, I am Dharamveer. I welcome you all to my channel. So I have a video for you on real number. I have already uploaded one video on this topic. So in continuation with that, I am uploading another video on this topic, real number. So I have written one question here. Show that any positive odd integer is of the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5, where q is some integer. Solution: let A be any positive integer A is any positive integer and B is equal to 6, because so as according to Euclid algorithms, so A and B are two integers where A is considered as the greater number and B as the smaller number. So we take B as the divisor. So here we are taking B as equal to 6, a divisor that is equal to 6, and Q is greater equal to 0. The Q is a quotient. This is some integer and the value of Q is greater equal to 0. That may be 0, 1, 2, 3, 4, 5, any. And this R, B remainder therefore according to Euclid algorithm, so A will be 6q plus R. The integer is a greater number. We are taking it as a dividend, so that will be equal to 6 multiply quotient plus remainder. So remainder is greater equal to 0 and lesser than equal to 6, means the R, therefore R can be 0, 1, 2, 3, 4 and 5. So any value of R, the remainder maybe 0, maybe 1, 2, 3 or 4 or 5. So therefore, if value of R is these 6 values for R, then the A will be 6q plus 0, 6q plus 1, 6q plus 2, 6q plus 3, 6q plus 4, 6q plus 5. So any of these 6 values that can be for the integers. So now you have to select from these 6 value which is required for you. देखिए अब इसमें ये हमने 6 वैल्यू लिखी हैं, तो A is equal to 6q plus 1, 6q plus 2, 6q plus 3, 6q plus 4, 6q plus 5. Out of these 6 values, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So you have to pick only the odd integers. So this value is even, this is again even, these 3 values are even. So since 6q plus 2 and 6q plus 4 are even integer, therefore
the any positive, therefore any positive odd integer will be of the form 6q plus 1, जो वैल्यू बीच में रह गई है, जैसे ये 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 4, और 6q plus 3 or 6q plus 5. So these were the three values which are possible for any positive odd integers. तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर. So next question. The next question is, so you use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. अब इसमें आपको कि किसी भी इंटीजर का स्क्वायर है, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर है, इस फॉर्म में होता है, ये आपको प्रूव करना है. सॉल्यूशन, let x be any positive integer which can be expressed as 3x plus 1 or 3x plus 2. So this can be written in the form like this: 3x plus 1 or 3x plus 2. Here where b is equal to 3 means the divisor equal to 3 and q greater equal to 0. So q is either 0, 1 or 2. q की वैल्यू जो है कुछ भी 0, 1, 2 कुछ हो सकती है, and the remainder is greater equal to 0 and less than 3. So we have to prove that the square of these numbers will be of the form 3m or 3n plus 1. अब हमें ये प्रूव करना है कि इनका जो स्क्वायर है वो इस फॉर्म में होगा. So taking the squares, square of 3x plus 1 or 3x plus 2, square of so a will be equal to 3x square. The square of a will be equal to 3x square, that will be 9x square. So a is an integer, positive integer. So we are taking x here, that this can be expressed in other alphabet. X we have taken here, so we will take here another alphabet, that is a 3q plus 1, 3q plus 2. So q is the quotient. The word q stands for quotient. Squaring of 3q so that will be equal to 9q square, and that will be equal to
the square of a, that will be equal to 9q square, and we can write it as 3q square. 3 multiply 3q square and equal to 3m. Here m is equal to 3q square. We are taking 3q square as equal to m and any integer. So we have taken square of first number 3q, and taking square of the second number. A is equal to 3q plus 1. अब हम इस नंबर को ले रहे हैं, अब टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, सो a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3q plus 1 whole square, and that will be equal to 9q square plus 1 plus 6q. So 9q square plus 6q plus 1. इसमें से कॉमन फैक्टर आप लीजिए, इन दोनों में से कॉमन फैक्टर क्या आएगा 3, बाकी क्या बचा 3q square plus 2q plus 1. 9q square plus 6q, इन दोनों में से हमने सिर्फ ये एक 3 कॉमन लेना, 3 से इसको डिवाइड करना, बाकी बचेगा 3q square और 2q, और इसको हमने कर देना बराबर 3m के. Here m is equal to 3q square plus 2q. Therefore square of a, therefore a square is equal to 3m plus 1. The square of this integer is equal to 3m plus 1. Now take another third, a is equal to, then a is equal to 3q plus 2. The squaring of both sides, a square 9q square plus 4 plus 2 into 3 into 2, that is 12q. So 9q square plus 12q plus 3 plus 1. इस 4 के हमने दो पार्ट कर दिए, 3 और 1. इसमें से हमें 3 से इसको डिवाइड कर देना, तो आ जाएगा 3q square plus 4q plus 1 plus 1. 9q square 12q, और 4 को हमने दो हिस्सों में इसको ब्रेकअप कर दिया, 3 plus 1. तो इस ये तीनों के तीनों जो टर्म्स हैं हमारी 3 पे डिवाइड हो सकती हैं, तो इसको डिवाइड किया 3q स्क्वायर, इसको डिवाइड किया 4q, इसको डिवाइड किया 3 से यह, और इस पूरे इसको हमने m के बराबर रख देना, तो ये बन जाएगा 3m plus 1. Here m is equal to 3q square plus 4q plus 1. तो ये बराबर हो गया इसके. So in this way, therefore square of any positive integer is of the form or 3m plus 1. तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो है वो इस फॉर्म में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is, use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is either of the form 9q or 9q plus 1 और 9q plus 8. जैसे हमने स्क्वायर को प्रूव किया, सिमिलरली इसको भी हम उसी तरीके से क्यूब को भी वैसे ही प्रूव करेंगे.
let x be any positive integer it can be written as 3m plus 1 or 3m plus 2 where b is equal to 3। यहाँ पर जो डिवाइजर है वो 3 है और तो रिमाइंडर जो है द r is greater equal to 0 और लेसर इक्वल टू 3। रिमाइंडर जो है वो 3 से छोटा है, 0 से बड़ा है, 0 भी हो सकता है 0 से बड़ा, यानी रिमाइंडर कैन बी सो here कैन बी r कैन बी 0 1 और 2। तो इसलिए हमने इसमें पहले यहाँ 0 जोड़ा, इसमें 1 जोड़ा और इसमें 2 जोड़ा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइजर जो है b की वैल्यू 3 है तो m जो है कोशेंट है, तो here we are taking m as the quotient. The quotient is equal to m. तो b जिसे हम b मान रहे हैं that is equal to 3, that is divisor, and the quotient the cube we are taking as m. Now we have to prove. अब हमें इसमें प्रूव क्या करना है कि इनका जो किसी का भी जो क्यूब होगा वो होगा 9 क्यूब प्लस 1 और 9 क्यूब प्लस 8 के फॉर्म में हो सकता है। सो टेकिंग क्यूब x is equal to first is 3m, so taking cube on both sides, so x cube is equal to 27m cube। अब इसमें से कॉमन लीजिए आप 3m cube, 9 से डिवाइड, क्योंकि हमें 9 यहाँ पर रखना है, तो 9 से डिवाइड किया तो ये हो गया 9 into 3m cube, so that will be 9 cube, because 3m cube is equal to cube। हमने इस पार्ट को क्यूब के बराबर मान लेना है, तो ये पार्ट क्यूब के बराबर हो गया, तो ये 27m क्यूब बराबर आ गया 9 क्यूब। सो सेकंड पार्ट, नाउ टेकिंग 3m plus 2 equal to x, x is equal to 3m plus 2 taking cube, so sorry फर्स्ट ये रहेगा पार्ट बीच में, taking cube on both sides, x cube is equal to 27m cube plus 1 plus 3 into 3m plus 1 multiply 1 into 3m plus 1, 27m cube plus 1, ये बन गया 9m, मल्टीप्लाई किया 3m प्लस 1 को, 27m क्यूब प्लस 1 27m स्क्वायर प्लस 9m, तो ये बन गया इसका सारे का होल क्यूब। अब इसको आप सीक्वेंस में लिखिए, 27m क्यूब 27m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 1। अब हमें इसको किसके बराबर प्रूव करना है, 9 क्यूब प्लस 1 को, यानी 1 को आप अकेला छोड़ें, बाकी को डिवाइड करें 3 से,
ये इतना हिस्सा 3 से डिवाइड हो जाता है। तो यहां लिख रहा हूं मैं इधर एक्स क्यूब बराबर, सॉरी ये 9 से डिवाइड करके ये है, तो हो गया 9 क्यूब प्लस 1। Here the cube value of cube is 3m cube, 3m square plus 1। ये वैल्यू हुई क्यूब की। तो एक्स क्यूब बराबर हुआ 9 क्यूब प्लस 1। अब हमें एक और टर्म है इसमें 3m प्लस 2, वो भी लेनी है, इसका करना है क्यूब। x is equal to 3m plus 2, taking cube on both sides, so x cube 3m plus 2 whole cube, 27m cube plus 8 plus 3 into 3m multiply 2 into 3m, 27m cube प्लस 8। अब इसे मल्टीप्लाई करें, 3 to 3 9, 9 into 2 18, 18m मल्टीप्लाई with 3m plus 2, 27m cube plus 8 plus 54m square plus 36m। अब इसमें से ये पार्ट पीछे करें, 27m क्यूब 54m स्क्वायर प्लस 36m प्लस 8। अब इन तीनों में से 9 कॉमन निकालिए, कॉमन, 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 8। ये बन गया सारा पार्ट 9 क्यूब प्लस 8, यानी इस पूरे पार्ट को आपने क्यूब मान लेना। तो यहाँ पर क्यूब की वैल्यू है 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m, ये बराबर हो गया क्यों के, तो देयरफॉर x क्यूब बराबर आया 9 क्यूब प्लस 8। तो इसलिए अब हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, सो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड, मैं अब नीचे लिख रहा हूँ, सो देयरफॉर हमने तीनों का क्यूब करके दिखाया। तो तीनों को क्यूब में हमने ये प्रूव किया कि क्यूब ऑफ एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, therefore cube of any positive integer can be either of the form 9 cube और 9 क्यूब प्लस 1 और 9 क्यूब प्लस 8, यानी कुछ भी इन में से तीनों फॉर्म में से कोई सा भी फॉर्म जो है उसके क्यूब का हो सकता है। दैट वाज द आंसर, दैट वाज प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई 7 multiply 11 multiply 13 plus 13, एक पार्ट, and 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 are composite numbers। अब शुरू के इंट्रोडक्शन में मैंने वीडियो में आपको बताया था कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं which are divisible by any of the integer,
यानी किसी नंबर से जो डिवाइड हो जाते हैं पूरा वे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो इसमें आपको ये दो पार्ट दिए गए हैं, दोनों में से प्रूव करना है कि ये भी कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है। कैसे, वो आपने करके दिखाना है। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट इज 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। अब देखिए ये 13 और ये 13 दोनों किस पे डिवाइड होते हैं, 13 पे। तो यहाँ हम इसका 13 जो है कॉमन फैक्टर ले रहे हैं, तो यहाँ आ गया 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस यहाँ पर 13 से डिवाइड किया तो आ गया 1। तो 13 ब्रैकेट में इसके मल्टीप्लाई 7 इंटू 11 कितना हो गया 77 प्लस 1, यानी 77 प्लस 1 ऐसे हो गया 13 multiply 78. So it is a composite number. कैसे? क्योंकि ये नंबर किस पर डिवाइड हो रहा है, 13 इंटू 78 किस पे डिवाइड हो रहा है, 13 पे भी 78 पे भी। तो इससे कंपोजिट नंबर डिविजिबल बाय 13 एंड 78 आल्सो। इसी तरीके से अब दूसरा नंबर आपको प्रूव करना है। सेकंड पार्ट इज 7 मल्टीप्लाई 6 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। अब इसमें भी देखिए दो जगह 5 लिखा है, तो ये 5 से एक कॉमन फैक्टर बन जाएगा, 5 से डिवाइड करिए, रहेगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करें, 3 गुणा 2 6, 6 गुणा 4 24, 24 गुणा 6 144, 144 गुणा 7 28, 28 2 30 और ये हो गया 1008 प्लस 1। यहाँ तक गुणा हुई 7 से 42 42 4 168, 168 को 6 से 6 48 96 4 प्लस 1, तो 1008 प्लस 1 यह है 5 multiply 1009. So again it is a composite number. Divisible by 5. जैसे ये 13 से डिवाइड हो सकता है, ऐसे ही ये भी 5 से डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए ये पूरा नंबर जो कि लिखा गया था ऐसे फैक्टर्स के फॉर्म में, तो वो पूरा कंपोजिट नंबर था। ये भी कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट है, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से अब आप इसको प्रूव कर सकते हो कि कैसे एक पॉजिटिव नंबर है, कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। So here written two questions. First is find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. इस तरीके का क्वेश्चन मैंने एक पहली वीडियो में भी जो है किया हुआ है, तो वहाँ पर हमने दो इंटीजर लिए थे। यहाँ पर अब की बार तीन इंटीजर्स का एलसीएम और एचसीएफ जो है निकालना कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आपके ये दो क्वेश्चंस इसमें सिलेक्ट किए हैं। और एक क्वेश्चन और है नीचे, गिवन दैट द एचसीएफ ऑफ 306 and 657 is equal to 9, find the LCM of 306 and 657. First of all, I take the second question first. So two numbers are A is equal to 306, B is equal to 657, and HCF is 9। LCM आपको निकालना है।
According to formula, A into B is equal to HCF multiply LCM. So LCM will be A into B divided by HCF. A is 306, B is 657, and HCF is 9. The LCM will be this. 9 3s are 27. तो 9 से कटिंग करके ये आ गया 34 और ये रह गया 657. इनकी मल्टीप्लिकेशन करें 34 को 657 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 22338. सो दैट विल बी द एलसीएम. ये इस क्वेश्चन का होगा आंसर. बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि जब आपको एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है और दो नंबर दे रखे हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है मल्टीप्लाई द गिवन नंबर्स एंड दैट विल बी इक्वल टू द एचसीएफ एंड द एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर. तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड द एचसीएफ. एलसीएम निकालना हो तो एचसीएफ से डिवाइड करो और एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम से डिवाइड करो. Find the LCM and HCF of the following integers. First part is 17, 23 and 29. The prime factor of 17, 1 and 17, 23, 1 and 23, 29, 1 and 29. अब देखिए मैं ये सभी क्योंकि 17, 23, 29 they are the prime numbers having no common factor other than 1. तो इसलिए इनमें कोई ऐसा फैक्टर नहीं है, ये सिर्फ 1 पे डिवाइड होते हैं या फिर सेल्फ पे डिवाइड होते हैं. इसलिए 1 ही इनमें सब में कॉमन है, दैट एचसीएफ विल बी 1. तो यही सब में कॉमन है. तो एलसीएम क्या होगा 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 19 और 1 से मल्टीप्लाई करे ना करे तो वही आएगा जो बिना 1 के मल्टीप्लाई करे से. सो दैट विल बी 11339. तो एलसीएम विल बी दिस 11339. तो एचसीएफ हुआ 1 और एलसीएम हुआ ये हुआ एलसीएम और ये हुआ एचसीएफ. सेकंड पार्ट 8, 9 and 27. ये 3 नंबर है. तो फैक्टर ऑफ 8 है 2, 2 and 2. 9 पे 3 and 3. 27 के 3, 3 and 3. These are the again prime factor of 27 3, 3, 3. 9 3 3 3 8 2 2 2. अब कॉमन क्या है देखिए, कुछ भी कॉमन नहीं है सिर्फ 1 के. सो एचसीएफ विल बी 1. 1 is HCF for all these. Then the LCM will be 2 2 2 28 multiply 3 3 3 and then multiply 3 3 and 3. अब क्या है इसमें अगर देखें कॉमन के हिसाब से इन दो में 3 3 कॉमन है, पेयर है, यहाँ भी है पेयर 3 का, लेकिन ऊपर नहीं है. हमें सब में देखना है ऊपर तक. तो इसलिए इसका जो एलसीएम है सबका प्रोडक्ट के बराबर है. तो देखिए कितना बनता है 8 into 9 72 और उसे 27 से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 1944. ये आएगा एलसीएम.
तो ये 2 क्वेश्चन मैंने और आपकी प्रैक्टिस के लिए कराए हैं। 3 नंबर 3 इंटीजर्स का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना, कि आपने तीनों में ये देखना होता है कॉमन फैक्टर कौन सा है। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ 1 के, तो एचसीएफ हो गया। और एलसीएम के होगा जो बचे हैं उन सब का लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो देखिए क्या बनता है। ये सारे 2 लिए, सारे 3, तो इसमें से क्योंकि कुछ भी एचसीएफ नहीं था, हमारा 1 ही था, इसलिए उनका जो प्रोडक्ट होगा सबका वो एलसीएम होगा। क्योंकि एलसीएम वो नंबर होता है जो सब पे डिवाइड हो, सभी नंबरों से डिवाइड जो हो जाए वो होता है एलसीएम, और जो सबको डिवाइड कर सके वो होता है एचसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, here is a question. Next question. There is a circular path around a sport field. Sonia takes 80 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they again at the starting point? Suppose this is a starting point A. यहाँ से 2 बारी से एक ही समय चलते हैं। एक है सोनिया यहाँ से A से स्टार्ट करके एक पूरा राउंड लेने के बाद अगर A पे पहुंचती है उसको लगते हैं 12 मिनट, उसको लगते हैं 18 मिनट। और उसी जगह से उसी समय अगर वो दोनों, एक दूसरा नाम है रवि भी अगर चलता है पूरा राउंड लेता है तो उसके लगते हैं 12 मिनट। अब उन दोनों ने एक ही समय पे स्टार्ट किया चलना, सोनिया भी और रवि भी, कि दोनों जो है कितने समय के बाद आपस में आकर या इसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। सोनिया भी और रवि भी जब दोनों यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए से, वापस पूरा राउंड लेने के बाद ए पर वो कितनी देर के बाद दोनों इकट्ठे मिल पाएंगे, ये इस क्वेश्चन का आपको आंसर निकालना है। सो द टाइम फॉर सोनिया 80 minutes, time for Ravi 12 minutes। अब कितनी देर बाद दोबारा मिलेंगे, हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना होगा। सो वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 and 12। तो फैक्टर ऑफ 18 2 into 3 into 3, 12 के फैक्टर 2 into 2 into 3। तब एचसीएफ देखिए क्या बना इसका एचसीएफ, एचसीएफ हो गया 2 into 3 that is 6। और एलसीएम के लिए क्या करेंगे हम, जो रह गए हैं 3 और 2, पहले वो लिख लीजिए, एक 3 रह गए, 2 रह गए, और एक 2 इसमें से लें, एक 3 इसमें से, यहां से पेयर में से एक 2 और 3 के पेयर में से एक 3, पेयर कितना बना 36 मिनट्स। यानी आफ्टर 36 मिनट्स दे विल रीच द सेम पॉइंट आफ्टर कंप्लीटिंग दैट राउंड। अगर एक ही समय चलते हैं और अलग अलग समय लेते हैं फिर भी ये तो दोनों 36 मिनट के बाद उसी जगह पर फिर से पहुंच जाएंगे। दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। मैंने ऐसे का एक्स्ट्रा आपके लिए निकाला है, ऐसे इसकी जरूरत नहीं थी। So dear students, I have given the solution for most of the questions from the exercise. There are still some questions left, so that will be picked up in the next video. So अगले वीडियो में मैं जो बाकी के जो क्वेश्चन रह गए इरेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिनको हमें प्रूव करना है कि दे आर द इरेशनल नंबर्स, तो उनको प्रूव करने के लिए हम अगली वीडियो, क्योंकि उसमें अगर इसमें करें तो वो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम उसको अगली वीडियो में उन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ध्यान से देखें, उसको पढ़ें, सुने, समझें
और अगर अच्छी लगे तो उसको जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।